بہت ہی خوشی کا مقام ہے اور ساتھ میں پیپل ڈیموکریٹک پارٹی یونٹ کرگل کے اور سے تمام کرگل کے عوام کی طرف سے ان معزز مہمانوں کو سرزمین کرگل پر خوش آمد کرتا ہوں، ویلکم کرتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا ہمارا مہمان ہے آنریبل ایم ایل اے جناب یاور دلاور میر صاحب، ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ دوسرا ہمارا مہمان عزیز ہے آنریبل ایم ایل اے جناب اعجاز میر صاحب، اور تیسرا ہمارا مہمان عزیز ہے آنریبل ایم ایل سی جناب فردوس ٹاک صاحب، اور چوتھا ہمارا مہمان عزیز ہے آنریبل ایم ایل سی جناب ایم خورشید آدم صاحب۔ جموں اینڈ کشمیر پیپل ڈیموکریٹک پارٹی، جموں اینڈ کشمیر پیپل ڈیموکریٹک پارٹی، جناب حاجی عنایت علی صاحب، جناب قاچو احمد علی خان صاحب، میڈم محبوبہ مفتی صاحب، جناب اعجاز میر صاحب، جناب خورشید عالم صاحب، جناب فردوس صاحب، جناب دلاور صاحب، اور جموں اینڈ کشمیر پیپل ڈیموکریٹک پارٹی۔ درے بندے سے مطلب مفتی صاحب لیکن آتا دو تنگ نرے شکر بات خصوصاً جناب مفتی صاحبہ کرکل اپتیکل لیگی خود شچکنا مہربان یکتی شیطیانا درے نکا بچے حجی عنایت اللہ چارمین تاؤں چانا اچھا پتا مقصد میں یہ جو چین بکواچی چیتاں سی سامنے کیونکہ بندے حقین آئے کہ ایمچے ہو سے اچھا لے بنا کرسی ہوتانا ہوا عجب کرسی ہوا کیوں اس نفسی بادشاہ نے دار فتح شروع من عجب چکا آگیا کو پھریجوں سے دے گا چو بس رینچا مفتی محمد سعید صاحب جو کو چیز ہوتا دے دنا زیر مزر با پھر تعریب مبا ہری دے چھک چھا اکر پر جاب سے چھوٹ وطیون عدب چی انتو خوش مطان عدب چی تانسین لہذا اچھا دیان یہاں سی چیز ہے چی احداؤ چنتان کرگیلو با لداخلہ تا جنبور کے شمیدان تان چو حکومت یوں سکنا اکیا بدت ناسکن تھوڑا کانچا میں کرگل والو تم نماز پڑھو، تم نماز پڑھو کھو کرگلوں پر نماز چبھر کرگلوں پر دنیا لگ نماز چبھر باقی نمیشس کیا قرآن کرگلوں پر دنیا نمبر ایک خوش الٹا تار گولی دے تو اتوں کہاں کونچے گولی تار نوک لکھمی کرنا چاہیے مثال لوگ اعلان لوگ اگر اعلان پر سٹ نہ دے تو پھانسے کا سٹ پر وہ پھانسے کا سٹ پر میں دو چور پتہ میں چھت بشی چاہیے دو چور پارٹی تو در جوائیم جناب محترم مفتی صاحب خودتان یہاں جب غریب کو رسم سے جو نظر شخص خود جی پارٹی چوز کر جی پارٹی کا دیو لے کر لے یہ سمائی نایائی چوک چھوم سندرام چوک بندیا لو سم سوا لو سم این چوکلا 50 سال 45 سال اگر حکومت بس بننا چی بچیں میں تو سمت تو آخر جتنا دے انسانیت اتنا زدنو غیرت رسول سمت اگر انسانیت نہ تحیط تو ٹھیک ہے یہ پارٹی نے بچاؤ زدنت اے پارٹی نے بچاؤ زدنت جوش چیواز ونی زد بننا 70 سال 70 سال نہ خطران مدوشتنا زو جدی تندر کو ظلم چی کم سے کم اس سیاسی نا 70 سال میں زد نہ عنایت سے جو تو کچھ ہوتے زو جدی تندر کو سے خیو جو گا قوم کوئی جو گا انسانیت کوئی و ترگیل زندگی اولاد نہ گوشت جو ازن دائیں تمام لوگوں جن سے چاہاں با حق دیتے چکن چی گا اکل کوئی ہو
गा इंसानियत पूरी इंसान तमीज तमचे नोन लोगों ने तमीज तमचे दो इंसान जच्चे थी मतलब बलम जच्चे थी Benaatan ki gördük arkadaşlar tanrım ya tersiket bayağı yonsuz açın milyon yonsuz açın kara. Ne demek दी पार्टी और ये मकसद को मुख्तसर बच्चे दिन दी पार्टी जरूरी मुनज़्ज़म था. मुझे हमारे अमर तकरीबन 70 साल होने वाला है. इसमें हमने बहुत कर्जल में डेढ़ देखा और कश्मीर में और बेहाना भी देखा. मगर बहुत दावे करते गए और झूठे दावे करते गए, कुछ काम नहीं किया. इससे मोहम्मद साहिब साहब ने जो वादा करते थे वो निभाते थे, असल वादा वाले थे. और ये एक गुजरा कानून हमारे 50-60 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ. ये ये सारा देखकर हमने उसी वक्त फैसला किया कि क्यों ना हम करगिल और अपनी तरक्की के लिए, अपने कौम और मिल्लत की तरक्की के लिए हाजी साहब जैसे लीडरों के हाथ मजबूत करें. लेकिन जब से हाजी साहब ने लोगों ने हाजी साहब को ज्वाइन करना शुरू की, यह भी हमारे अपोजिशन पार्टी को हजम नहीं हुआ. कहने लगा कि आजकल लोग हाजी साहब से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है, मकसद है, आज गवर्नमेंट में है तो इसलिए पैसे के लिए, सीरियल के लिए, नौकरी के लिए हाजी साहब से जुड़ रहे हैं. यह भी हमारे वर्कर्स पे ब्लेम आने लगा हमारे अपोजिशन पार्टी से. लेकिन खुदा का करना आज हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है. आज हाजी साहब के दाएं बाएं हाजी साहब की जो दोस्त मिनिस्टर हुआ करते थे वो सब नहीं है पावर में. उसके बावजूद भी आज इतने दूर दराज इस पाँव में आकर हमारे वर्करों की जो ठाटा मारता हुआ जो मौजे समुद्र यहाँ पे नजर आ रही है, साफ जाहिर होते हैं कि लोग पार्टी से नहीं, पार्टी की क़यादत से जुड़े हुए हैं, लीडरशिप से जुड़े हुए हैं. आज हम हुकूमत में नहीं, लेकिन हुकूमत में न होते हुए भी कुछ बहुत सारे वजूहात हैं. आज हुकूमत किस हालत में छोड़ा. महबूबा जी ने इसमें ये हुकूमत संभाला था, दर्जियार निगाह का कहना था कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन है. हमें पता था कि ये हुकूमत ज्यादा देर पैदा नहीं हो सकता है. क्योंकि बीजेपी का एजेंडा अलग था, पीडीपी का एजेंडा अलग था. हम महबूबा जी को सलाम करते हैं कि उसने हर वक्त कश्मीर के काज के लिए 370 को बचा रखने के लिए, 35A को बरकरार करने के लिए उसने अपनी कुर्सी का परवाह नहीं की और हमेशा आवाज उन्होंने बोला कि कश्मीर एक सियासी मामला है, इसमें 3 वजह है, इन तीनों को एक टेबल पर होकर इस कश्मीर का फैसला करना पड़ेगा. भाइयों, एक मामूली बात नहीं है, ये एक आम आदमी बोल सकता है. ये महबूबा जी के जरूरत था कि वो सिंह को कुर्सी पर थे कश्मीर के काज के लिए. उसने हर जगह ऐसे बयान दिया. हालांकि कुछ महीने पहले राजनाथ सिंह जी जो है वो कश्मीर आया, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था. उसके सामने उन्होंने कश्मीर के काज के लिए जो बयान दिए, हम हैरान कुछ है. और ये बात इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि कश्मीरी लोग इतना ये नहीं है और इस बात को समझते हैं कि महबूबा जी को कुर्सी छोड़ना पड़ा तो इसलिए कि आज उन्होंने कश्मीर के इसके लिए बात किया, कश्मीर के इज्जत के लिए बात की, कश्मीर के बका के लिए बात की. तो ये कश्मीरियों के दिल में जरूर इसका ये रहेगा. और अफवाह उड़ाते हैं कि पीडीपी कमजोर हो गया, ये हो गया. वक्त आने तो इंशाअल्लाह हमारा देखा जाएगा पीडीपी कमजोर है कि क्या है. बताएगा. हमें उम्मीद है कि कश्मीरी लोग जिस तरह से महबूबा जी ने अपने इसमें कि कश्मीर के इज्जत को बरकरार की कुर्बानी दी, उसको जरूर वो कश्मीरी लोग समझ जाए. आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमारे साहब को महबूबा मुफ्ती साहब ने यहाँ चेयरमैन बनाया.
हम बहुत मशहूर हैं क्योंकि वो हमारा कैंडिडेट था, MSc भी ले गया, लेकिन इनायत साहब ने इस PDP को बराबर के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। हमें पता है यहाँ पर कुछ गिने हुए PDP के काम करने वाले थे। आज खुदा की मेहरबानी से ये इतने वर्कर यहाँ पर जमा हुए, ये इसी की मेहरबानी है। इनके समझ में बहुत फर्क था कि ये किसी पेशेंट है। तो इसके बाद जब से हाजी साहब का इक़्तिदार संभाला, हाजी साहब वहाँ आए, लोगों ने इनको बिन बुलाए या किसी कंप्लेंट के बगैर वहाँ से इनको इन्वाइट कर दिया, यानी दावत दे जा और घर घर गांव गांव माले माले में जाकर इनके साथ जो है ये पार्टी ज्वाइन किया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे BDP जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। और BDP ने खासकर हमारे जो अर्जहानी मरहूम मुफ्ती साहिब साहब ने बिलखुसूस द्रास के लिए जो सब चीजें शुरुआत में जो है इसका ऐसा जो हमारे द्रास वालों के दिलों में है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला इसको फिर तो उसमें जगह नसीब फरमाए। और इसके बाद यहाँ हालिया इन्हीं 2-3 सालों में हाजा इनायत अली के इक़्तिदार में यहाँ पर हमारा जो ये रोजगार टंडल भी शुरू हुआ है। और खासकर यहाँ हमारे द्रास में पावर जो था वो गैस पावर इसको कहा जाता है, वो चालू है। इस साल विंटर में बराबर हमें बिजली रहा, एक दिन भी कटौती नहीं रहा। इनका बहुत हम मशहूर है। हबीबुल्ली वक़्त यानो हबीबुल्ला हबीबी दस्तिन नियम केरना सियासती मुस्तहिद पुंगरा अंदरे जो केरना आता हाजी इनायत अली साहब सियासती मुस्तहिद पुंगरा आता ठप सिंह तो जाओ या माता अजर देर गोशा मिंदो कि इंशाअल्लाह माता केरना वक़्त की दौरान इंशाअल्लाह जरे केरना काटवाना हज खान निकलना से जन्नत अली साहब निकलना से का माती नुमाइंदा केरना गांव केरना डाकिन ना नुमाइंदा हर जगह नु केरना मुकर्रर जो त्या केरना मजबूत जो इंशाअल्लाह माता केरना या जो मिर्गल भी तुक ने नता केरना लूज ना सो माता केरना सिंग मा छोट नाती केरना हुकूमत को गेल कोंगी ताकीब PDP हुकूमत पर काम मस्जिद जागी कहीं नहीं इंशाअल्लाह उम्मीद की पंजितान है माता केरना उम्मीद इन मना गामा कामया छचाइन दानो माता पे फिल्म सोशिक या दे केरना कतो जो है इनायत अली केरे देना तरखियात करना मना खोंगा मना चिस्ती मिक्सी हाजी इनायत साहब ने 3 साल के अंदर करके देखा है, एक पूरा करतूत जमात को पता है। जो 50 साल से कारगिल और शरगुल बुला को बेवकूफ बना के रखा है, गुमराह करके रखा है, आज उनको तमाचा मार दिया हमने। मैं शरगुल बुलाक से निमंत्रण करता हूँ, शरगुल बुलाक आज तक जो भी पार्टियां है नजरअंदाज करता था। बिल्कुल हम शरगुल बुलाक डिस्ट्रिक्ट की बुलाक में सबसे करीब बुला गए, ये आप सबको मालूम है। मगर जब से हाजी साहब आया है तब से शरगुल के अवाम खुशी की लहर से झूम रहा है। चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे मुस्लिम हो, सब आज सबकी जुबान पर बच्चे हो बूढ़ा हो हाजी के नाम लेता है, हाजी के नाम PDP का नाम लेता है। मैं यहाँ आया तमाम उलमा और नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, आने वाले कौंसल इलेक्शन में 24 के 24 सीट हमने हाजी इनायत को देना है। आप लोग ने आज तक हाजी साहब से मांगा है, हाजी साहब के दरवाजे पर जब हाजी साहब चिनार चाहता है, मैंने देखा है रात के 12 बजे तक हाजी साहब सोता नहीं है, लोगों के दुख तकलीफ सुनता है। मगर आज हमने हाजी साहब को देना है कुछ। मैंने शरगुल बुलाक का वादा किया है, मेरा कौंसल हाजी साहब को आना है। यही वादा तमाम कारगिल के नौजवान से चाहता हूँ मैं, यही वादा तमाम उलमाओं से चाहता हूँ। जब हाजी साहब आता है तो एक डॉक्टर के ऊपर लेन लगा कर रहता है, लोगों का मारी उसी तरह भारी नहीं मिलता हाजी साहब के घर में। और हाजी साहब ने किसी को दुखी नहीं किया है, जबकि हाजी साहब के दरवाजे जाता है सब खुशी खुशी जाता है। मगर आज मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे बुद्धिस्ट हो, आने वाले
कौंसल के जो 24 सीट है वो 24 की 24 सीट पीडीपी को देना है। और हाजी साहब ने जो काम बताया है वो हर गरीब की बातों में सुनना चाहिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकला हो या कुछ निकला हो तो आप सबसे माफी चाहता हूँ। अभी वक्त की कमी है, जोश तो आ रहा है बोलने के लिए। जिस तरह हाजी साहब ने काम किया है, जिस तरह पीडीपी ने काम किया है लोगों को, आज मैं बताना चाहता हूँ करगिल वालों को, मगर आज टाइम नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सबको जुले सलाम कहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये सही और कोशिशें जो है कामयाब हो जाए और कामयाब हो जाए। और दोस्तों आप 70 सालों से हम ये देख रहे हैं, करीबन 70 साल से हमारा उम्र हो रहा है। हम सिर्फ दो ही पार्टी सुनते थे, नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। वैसे के लोगों ने भी अपने अपने लेवल पर काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन जिस पार्टी में जब आना आ जाता है, जब आना आता है तो उसको लड़ाई आ जाती है। इससे पहले भी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद साहिब साहब ने शायद करगिल के हर जगह पेश किया होगा, खुसूसन हमारे पानी घर में पूरा 26 घंटे उन्होंने काम बुलाया था। उस वक्त में फारूक अब्दुल्ला साहब की जरूरत थी तो हमने कुछ वीडियोस अपने पेश किए तो उन्होंने कहा कि फारूक साहब के अपना नहीं है, आप आइए, हम आपके काम करने के लिए तैयार। तो उसके बाद मरहूमा मुफ्ती जी आ गई और आते आते अल्लाह की मंशा से बहुत सारी पार्टियां खत्म हो गई और बीजेपी की हुकूमत आ गई। ये मेन ही है कि इस आदमी इस खिते को या इस मुल्क को, इस स्टेट को मतलब सबसे हाइट्स में ले सकते हैं। तो लिहाजा ये खुशाइन मौका है कि बाकी पार्टियों की तरह या हमारी इस पीडीपी पार्टी की बाकी सदर मुकामात की तरह यहाँ पर आज मतलब इनका एनुअल इजलास मुनक़द हुआ। तो सबसे पहले मैं तमाम ये मेहमान अजीज जो श्रीनगर से आए हुए हैं उनको वेलकम करता हूँ और फिर यहाँ के जो
मशहूर महरूफ रहनुमा जनाब हाजी इनायत साहब और काटू साहब और दीगर तमाम ब्लॉक सदूर और तमाम सामीन अस्सलाम वालेकुम। चाहता हूँ कि आप हाजी साहब को मत जाओ, मेरे साथ साथ वो लोग भी चाहते हैं कि हाजी साहब का साथ दे, आगे भी साथ देता रहेंगे इंशाल्लाह। या ना हो, हाजी साहब से मेरी गुजारिश यही है कि आप कुर्सी पे हो या ना हो, हुकूमत में हो या ना हो, अब इसी तरह से जो है लोगों के काम करता रहेंगे और हम आपका साथ देते रहेंगे। क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, क्योंकि हाजी साहब ने ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम किया बल्कि पूरे सब डिवीजन में, मेरे सब डिवीजन में जो है आज जो है खुदा की फजल करम से और हुकूमत की मेहरबानी से और हाजी साहब और सीसी साहब की मेहरबानी से जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट CHC चिकन जो है इस पे बिल्कुल काम नहीं चल रहा था। आज खुदा की फजल से इनकी बदौलत जो है वहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ फंड रहे हैं और वहाँ पे काम जो है जोर शोर से चल रहे हैं। और हमारे कुशों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने तो 2013-14 में हमने इसका एक प्रोजेक्ट 2013-14 में PMJSY के अंदर दिया था। हमारा काम है ये नुमाइंदा प्रोजेक्ट यहाँ से भेजना, लेकिन प्रोजेक्ट भेजने से कुछ नहीं होता है जहाँ वहाँ पे जब हुकूमत नहीं हो, जहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हो, फिर हमें हाजी साहब की शक्ल में एक नेक इंसान मिला। हमने हाजी साहब को बार बार कहा कि मेरा अपना रिश्तेदार भी हो सकता है, मेरा अपना मकसद भी हो सकता है। मैंने कभी हाजी साहब यहाँ पे बैठा हुआ है, वरना मैं हाजी साहब को चले हाजी साहब मेरे 2-3-4 रिश्तेदारों को नौकरी दे दूंगा, आपके साथ दूंगा। मेहरबानी कोशिश मेहरबानी पिता अनपढ़ नहीं सर्विस मेहरबानी सईद मुख्तार अच्छा गामला हकीनाथ साहिब सखत मशहूर मीना खंडी प्रोजेक्ट की जो अच्छा नल्ला लोग खची नल्ला खची नुकचैन की लज़ देन उठाव साजिना साहब दोरायों की बदौलती का अच्छा लाजे प्रोजेक्ट पे दखल जबरदस्त शुरू से कि इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद कि मचीरा लोग 22 करोड़ की प्रोजेक्ट की रोड मीना की जिला शुरू से तालिबान तालुक नचा उम्मीद की रसलतों सपा नचा गाँव नची नजर जा खोसू की ना बरसो इलाके नुमाइंदा बस इंशाल्लाह नची बरसो इलाके नची PDP मीना नचा इंशाल्लाह किसी नचा सोमार की जवानी ना नचा ट्रेनिंग बस यार दोना देना बुजुर्ग यार अच्छे नमो गामा नचा इंशाल्लाह दिचिक से दी कौंसल बहनों नचा PDP मीना सब दो बच्चे से शाहिर को ये जलसा इंशाअल्लाह खुदा तक की जलसा जाती मतलब में तीन जो आम करगिले मीन बस पे मलसेगी निजाम मस नबी हमजिनस उलमा सादातुल्लाह अलजबत दिरीन यास्कर पर बेइज्जती में मिलती दिरीन यास्कर पर यंते आईने अज़दी मिली ولو ذاتی سم نسم ینتا کرگیلی خورتو یادنا کرگیلی فکر یادنا کرگیلو خطا کرمی انتی مقصد نتونگو یادنا یوسف کنیانو یری ذاتی مطلب کو پھانسے یری ذاتی عزت کو پھانسے یونی ازو شکا چارو شاسی آج کا جو کنونشن کا جو سلسلہ جو آج ہم نے رکھا ہے یہ PDP کی طرف سے پہلی دفعہ کرگل میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ابھی کرگل میں نیا ہم نے شروعات کیا ہے۔ تو اس شروعات میں جو ہے ہمارے پارٹی جو ہے میں بہت سارے لوگ جوائن کیا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے ہمارے جو پرانے PDP والے ہیں جو پہلے میرے ساتھ آئے تھے اور نئے جو ابھی آئے ہیں ان کا تھوڑا ایک تو انٹروڈکشن کا مسئلہ تھا، اور دوسرا جو ہے ابھی کونسل الیکشن بھی اس نزدیک میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ہم نے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہے، اور تیسرا جو ہے یہاں پر جو ابھی سری نگر میں تھوڑا سا ہمارے پارٹی میں تھوڑا کرائس کی وجہ سے پولیٹیکل کرائس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگوں میں ایک ڈر جیسا ایک خوف جیسا پیدا ہو گیا تھا، تو ان سب کو دور کرنے کے لیے ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے سری نگر سے ہمارے پارٹی کی طرف سے 2 MLA اور 2 MLC یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، جن میں ہمارے خورشید عالم صاحب اور ہمارے ٹاک صاحب ہیں
तीसरा जो है हमारा एजाज MLA साहब है और यावर मीर साहब है MLA, 2 MLC यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। और आगे भी जो है अभी हमारे आने वाले काम के लिए, जो आने वाले इलेक्शन के लिए हमने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को थोड़ा हौसला अफजाई के लिए हमने ये गेट टुगेदर रखे यहाँ पर, ये कन्वेंशन रखा हुआ है यहाँ पर। देखो जो अभी खैर ये कोलिशन सरकार का तो किसी भी सरकार जो कोलिशन में होगा उसका कोई ख़ास भरोसा नहीं होता है। ये तो एक पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल एक ये है, मतलब कि हमेशा जो है कोलिशन जो काम करते हैं वो इतना सक्सेस नहीं होते हैं। कुछ जगह पे सक्सेस होते हैं, कुछ जगह पे ऐसे चलते हैं, मतलब टूट जाते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर हमने ये कन्वेंशन भी रखा है इसीलिए कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं यहाँ पर, जो वोटर्स है, हमारे पार्टी के वर्कर्स है, उनमें कोलिशन टूटना ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। हमारा मेन मकसद है कि यहाँ पर अभी आजकल ज़्यादातर जो है यहाँ हमारे अपोजिशन की तरफ से बहुत गलत तरीके के प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, गलत तरह की बातें चल रहे हैं, उनसे हमारे लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मसला क्या है। तो इसीलिए हमने ये कन्वेंशन रखा है कि एक सब कन्फ्यूजन दूर हो जाए और हमारा पार्टी किस तरह काम कर रहा है, पार्टी का क्या मतलब ये है, वो सब हमने अभी आज यहाँ पर क्लियर करने। और वर्कर को है, खासकर वर्कर्स जो है और एग्जीक्यूटिव बॉडी जितने भी है यहाँ पर, हमारे गाँव में हमारे बॉडी बने हुए हैं, उनको मतलब मोटिवेट करना है, उनको हमने कन्विंस करना है, उनको जो प्रोपेगेंडे हैं उन सबको हमने क्लियरेंस देना है यहाँ पर कि ये कौन कौन से। देखो मिसाल के तौर पर अभी हमारा एजाज साहब जो मीर साहब है, उसके बारे में जो है वहाँ दिल्ली में 4 बजे जो है वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था, जब प्रोपेगेंडे इतने खतरनाक चलते हैं। तो मैंने इसको खींच के लाया, मैंने कहा चल भाई आप तुम दिल्ली में जब वहाँ पर ये क्या बोलते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने गए हैं तो यहाँ पर हम कन्वेंशन पे आपको जाना ज़रूरी है। कहते हैं आपको खुद क्लियरेंस दे दो कि मसला क्या है, कि लोगों क्या है। ये एक सबूत है, मतलब ये प्रोपेगेंडा है सब कुछ। जो यहाँ पर जो है 90% जो है प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे जो अपोजिशन वाले हैं। तो लिहाजा इसीलिए हम सबको ले आए, हमारा ये सब ठीक हो जाएगी चला इस कन्वेंशन की वजह से। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.